Hello, Assalamu alaikum. बच्चों, class 8, how are you? Hope all of you are fine. Should I start? Okay. Now, class 8, today we are going to start our 6th lecture of history section. ठीक है? We have covered 2 chapters of geography. Then, after 2 chapters of geography, we started the history section. That was chapter number 5, and now chapter number 5 was finished, and today we are going to start our chapter number 6. Okay, now the name of the chapter 6 is establishment of Pakistan. पाकिस्तान का क़याम, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान बनाने के लिए how many people struggled, how many people were involved for the creation of Pakistan. ठीक हो गया. Now the name of the chapter is establishment of Pakistan, and the topic we are going to start is the two nation theory, the influence of Muhammad Iqbal. Two nation theory means that in the subcontinent the two nations, Hindus and Muslims, were living together in the subcontinent. Clear? So two nation theory was that Muslims thought that we couldn't live with the Hindus anymore, or we should have our independent homeland. So that was the beginning of the concept of two nation theory, that we are two separate nations and we could have live independently in independent states. ठीक है? और what was the role of Allama Iqbal in the formation of two nation theory? तो कौमी नजरिया जिसे हम बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट में उसकी जो रोल था, उसमें कायदे आजम इल्लामा इकबाल का क्या इन्फ्लुएंस था, इल्लामा इकबाल का क्या असर जो था, वो उनकी राइटिंग्स ने, उनकी थॉट ने, उनकी अप्रोच ने प्रोवाइड किया to the people of subcontinent and to the other leaders of the subcontinent who were trying hard to get the independent state. Now Muhammad Iqbal was born in 1877 at Sialkot in the Punjab. ठीक है? He was born in Sialkot in 1877. He studied at the Government College of Lahore, where he began to write poetry. और उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की? He studied in the Government College Lahore, जहाँ उन्होंने he started writing poetry also, शायरी भी लिखनी शुरू की. Later he taught English and philosophy there, और बाद में उन्होंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया इंग्लिश एंड फिलॉसफी. इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, जाहिर है आपको पता है, उसमें पोइट्री, प्रोज सारा, और फिलॉसफी भी एक सब्जेक्ट है जिसे हम फलसफा बोलते हैं. और फलसफे और फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एंड सोसाइटी. ये एक ऐसी स्टडीज है फिलॉसफी जो हमें बताती है कि हाउ टू थिंक ओवर डिफरेंट थिंग्स, हाउ टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया क्या है, दुनिया किस तरह बनी है, यूनिवर्स क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, इसकी इन सब चीज़ों की क्या अहमियत है. इट इज़ द स्टडी ऑफ फिलॉसफी. और फिलॉसफी हम कह सकते हैं कि व्हेन समवन स्टडीज फिलॉसफी, they want to understand how and people do certain things and how to live a good life. ठीक है? किस तरह लोग चीजें करते हैं और किस तरह अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्टडी टू नो द मीनिंग ऑफ लाइफ. क्लियर? तो फिलॉसफी जो है, इट्स अ वे to know the meaning of life. It's a way to think about the world, the universe, etc. So by जो इल्लामा इकबाल थे, he later taught English and philosophy in the government college, and by the time passed,
he went to Europe. वो यूरोप चले गए in 1905 and Iqbal had already established himself as an Urdu poet. और इकबाल जो थे वो चूंकि during his studies, during his कॉलेज लाइफ ही स्टार्टेड राइटिंग उर्दू पोइट्री. उन्होंने पोइट्री शुरू कर दी थी लिखनी. तो बाय द टाइम ही वेंट टू यूरोप तो ही ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए उर्दू पोएट. वो अपने आप को एज अ उर्दू पोएट जो थे वो स्टेब्लिश कर चुके थे. और इन इंग्लैंड एंड जर्मनी ही स्टडीड लॉ एंड फिलोसफी एंड ऑब्जर्व्ड वेस्टर्न सोसाइटी. और ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही वेंट टू यूरोप तो इंग्लैंड में और जर्मनी में ही स्टडीड लॉ. उन्होंने लॉ की तालीम हासिल की, कानून की तालीम हासिल की एंड फिलोसफी, और फिलोसफी की तालीम जो थी वो मजीद हासिल की. एंड he also observed, he did not only achieve the western education, he did not only he did not only get the western education, but he also observed their system, he also observed the western lifestyles, he also observed the western society. उन्होंने जो मगरबी सोसाइटी थी, मुआशरा था, उसको भी ऑब्जर्व किया, उसको भी, उसकी भी तालीम जो थी उसको भी देखा कि हाउ वेस्टर्न पीपल रिएक्ट, हाउ वेस्टर्न पीपल स्पेंड देयर लाइव्स, हाउ वेस्टर्न पीपल्स जो है बिहेव, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनके तरीके हैं, क्या उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स द लाइफ. Back in the subcontinent, Iqbal began to take an active role in the Muslim League. Or when he came back to subcontinent, when he came back to India, he took part he took part actively in the Muslim League. उन्होंने मुस्लिम लीग में जो था वो काम किया था. और his poetry inspired Indian Muslims with the ideas of freedom. और उनकी जो पोइट्री थी उन्होंने inspired the Muslims of subcontinent, and he threw an idea of freedom. He was the first person who actually through the idea of independence, the idea of freedom, confidence and national consciousness. उन्होंने अब लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा डाला. इस आज़ादी की जो चमक थी, आज़ादी का जो स्पार्क था, वो उन्होंने इन्फ्यूज किया अमंग्स द पीपल. और उन्होंने लोगों में build-up किया confidence, so that Muslims should think confidently about their independent state and national consciousness. और उनमें एक बहुत अहम चीज जो उन्होंने इन्फ्यूज की amongst the people वो ये थी कि वो कौमी सतह पर सोचें, वो अपने आप को, मुसलमानों को कौम बन के सोचें. ये सोचें कि मुसलमान जो हैं दे आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो एक नेशन है, वो आज़ाद हो सकते हैं और उनको हिंदुओं के साथ मिलकर जिंदगी जो है वो स्पेंड नहीं करनी. उनमें कौमी तशख़्ख़ुस, कौमी नेशनल आइडेंटिटी की कॉन्शियसनेस जो है वो पैदा करनी थी. He wanted that Muslims must have aware about their national identity. Or he believed that individuals could bring about reforms by their behavior. और he was of the view, Sir Sayyid जो इलामा इकबाल थे, he was very confident, he believed, he was very confident and he believed that people जो हैं, individuals जो हैं, they could bring change. वो कहते थे कि ये change जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कोई अल्लाह मियाँ ट्रे में रख के देगा, बल्कि लोग जो हैं वो चेंज ला सकते हैं. People could have bring change और they could have रिफॉर्म देयर बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने
इसकी एग्जाम्पल भी दी, लोगों को बताया कि किस तरह पीपल कुड चेंज देयर लाइव्स, पीपल कुड रिफॉर्म देयर लाइव्स, पीपल कुड रिफॉर्म देयर बिहेवियर्स। उन्होंने बोला कि दे कुड रिफॉर्म देयर बिहेवियर्स बाय ओबेइंग द लॉ, लॉ को मान कर, लॉ को फॉलो कर कर, जो इस्लाम के लॉज हैं उनको ओबे करके आप इस्लाम को अपना जिंदगी का मकसद बनाकर, कोड ऑफ लाइफ समझकर आप ओबे करें इस्लामिक लॉज, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, एंड बाय हैविंग सेल्फ कंट्रोल। और आपको अपने ऊपर, यू मस्ट हैव अ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मीन्स कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत गुस्से में हो और आप दूसरे को बुरा भला कह देते हो, मार लेते हो, कर देते हो, तो यू डोंट हैव अ सेल्फ कंट्रोल। लेकिन इफ यू हैव अ गुड सेल्फ कंट्रोल, तो आप अपने गुस्से को अच्छे तरीके से रिलीज कर सकते हो। आप उस बंदे को आराम से, प्यार से चीजें समझा भी सकते हो, और वायलेंट होने की बजाय आप पीसफुली भी मैटर को सॉल्व कर सकते हो। तो उन्होंने बताया कि आप सेल्फ कंट्रोल और बाय ओबेइंग द लॉ और टेकिंग एक्शन, और ये नहीं कि आप बैठ के सोचते रहो कि हाँ वी मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेट और उसके लिए करो कुछ ना, घर बैठे रहो, ये नहीं हो सकता। बल्कि यू एक्चुअली हैव टू मेक एन एफर्ट टू हैव, यू हैव टू टेक एक्शन। आपको प्रैक्टिकली जो है इस बात को प्रूव करना है कि आपको कौम, एक मुल्क चाहिए है, आपको आजादी चाहिए है, रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर, एज कंपेयर टू दोज पीपल हु एक्सेप्ट कि आपको जैसी चीजें हैं हम उसी तरह रह लेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, वो कहता है मैं अच्छी जॉब करूं, मैं दिन रात मेहनत करूं, मैं अपने घर को बेहतर करूं, मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाऊं, मैं अपने घर के हालात को बेहतर करूं, तो वो एक्चुअली एक्शन ले रहा है, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक आदमी है, वो कहता है खुद ही चीजें ठीक हो जाएंगी, यार छोड़ो मैं क्या जॉब करूं, और बस ठीक है अब्बू कमा रहे हैं ना, मैं भी खा रहा हूँ। तो ये बैठकर सोचने से चेंज नहीं आएगी, बल्कि आपको एक्शन लेने से चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी आपके। क्लियर बेटा? If you have any ambiguity, if you have any question, you can text. Now fact box. Iqbal gained a reputation as the greatest poet of the 20th century. ठीक है, और इकबाल जो थे, ये सबको पता है कि उनकी जो रेपुटेशन थी वो एक, हम जब भी इलामा इकबाल का नाम लेते हैं, हम जब भी इलामा इकबाल का जिक्र करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चीज सबसे पहले आती है? उनकी पोइट्री, कि वो एक पोइट थे, वो एक शायर थे। तो उन्होंने अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन जो थी वो बिल्डअप कर ली थी ऑफ द 20th सेंचुरी, एज अ पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। नाउ इकबाल्स पॉलिटिकल करियर। अब इकबाल का, ये तो हमने जनरल लाइफ पढ़ी कि उन्होंने किस तरह, हाउ ही स्टार्टेड acting as a political worker, how he started to influence the people of subcontinent. Now actually इकबाल्स political career जो था वो किस तरह हमारे सामने है। Iqbal's visit to Europe showed him that the nationalism could lead to racism and imperialism. और कायदे आजम का जो इलामा इकबाल का जो विजिट था यूरोप का, जो उनका यूरोपियन कंट्रीज का दौरा था, विजिट था, उसने उनको एक बात रियलाइज करा दी, एक बात उन्होंने समझ ली कि जो नेशनलिज्म है, जब हम कहते हैं ना वी आर नेशनलिस्टिक, हम वी हैव अ नेशनलिस्टिक अप्रोच, हमारी अप्रोच जो है इज बेस्ड अपॉन नेशनलिज्म। तो हम इसका मतलब होता है नेशनलिज्म का कि हम कौम परस्त हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हमने हुब्बुल वतनी है, लव ऑफ कंट्री है, पेट्रियोटिज्म है, हमारा मुल्क जो है हमारे लिए सब कुछ है। वो लोग जो अपने मुल्क के बारे में पहले सोचते हैं और अपने बारे में बाद में सोचते हैं, वो नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, वो नेशनलिस्ट्स कहलाते हैं। तो कायदे आजम जो थे, उन्होंने ये बात अपने यूरोपियन टूर से, यूरोपियन विजिट से सीख ली थी कि जो नेशनलिज्म है, जो हमारा पेट्रियोटिज्म है, लव ऑफ अ कंट्री है, वो हमें किस तरफ लेके जाता है? वो हमें रेसिज्म की तरफ लेकर जाता है, नस्ल परस्ती की तरफ
तरफ लेकर जाता है। नस्ल परस्ती क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्सन और पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर रेशियल और एथनिक ग्रुप, कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से रेशियल ग्रुप से, जिस तरह मुहाजिरीन है कराची में, वो जो है वो रेशियल ग्रुप्स हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं आपको, एक शख्स को किस बेसिस के ऊपर कि वो किसी खास पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं, तो वो रेसिज्म होती है। तो उन्होंने इस बात को बताया कि जो आपका नेशनलिज्म है, कौम परस्ती है, वो आपको लेकर जाती है रेसिज्म की तरफ, नस्ल परस्ती की तरफ, और या फिर इंपीरियलिज्म की तरफ, और दूसरा शहनशाहियत की तरफ। इंपीरियलिज्म होता है शहनशाहियत, समाजियत, जो कि वो कौमें जो कि एक्सटेंड करती हैं अपनी पावर को थ्रू मिलिट्री फोर्स, जो फौजी तरीके से जो है वो बादशाहत करती हैं, हुक्मरानी करते हैं, उनको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो आपका नेशनलिज्म जो है वो आपको लेकर जाता है टूवर्ड्स दी रेसिज्म एंड टूवर्ड्स दी imperialism. As a result, he concentrated on building the strength of Muslims rather than the strength of India as a nation. और इन चीज़ों के नतीजे में एज अ रिजल्ट, जब उन्होंने ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, ये चीज़ें सीख ली फ्रॉम द यूरोप, तो he concentrated more on building up strength of Muslims. He tried to strengthen the Muslims. वो मुसलमानों को मजबूत उन्होंने करने पे जोर दिया, बजाय इसके कि वो स्ट्रेंथन करें इंडिया को एज ए नेशन। मीन्स कि वो मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करने का उन्होंने उसके ऊपर जोर देना शुरू कर दिया, एज कंपेयर टू कि वो जो इंडिया था उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते, और इंडिया में हिंदू और मुसलमान दोनों आ जाते थे। तो उन्होंने इंडिया को एज ए नेशन स्ट्रॉन्ग करने की बजाय ही कॉन्सेंट्रेटेड मोर अपॉन स्ट्रेंथनिंग द मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों को मजबूत करना शुरू कर दिया। और इन 1926 इकबाल जो थे, ही वाज इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी वो काउंसिल जो लॉ बनाती थी, legislate करती थी। He tried to help the poor, for example, by requesting better health care for them. और जब he took the membership of the पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन्होंने क्या कोशिश शुरू की? He tried कि वो गरीब लोग जो थे, पुअर लोग जो थे, उनको हेल्प आउट करें। जस्ट फॉर एग्जांपल कि वो हायर अथॉरिटीज से ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग कि वो बेटर हेल्थ केयर जो है, लोगों की सेहत के जो मामलात हैं, उनके लिए वो काम करें। As time went, Iqbal became convinced that Muslims should have their own separate homelands where they could be free and of Hindu interference. और जो टाइम गुजरता गया, जो टाइम गुजरता गया, इकबाल जो थे वो कन्विंस होते गए, वो उनको ये बात समझ आती गई कि मुसलमान जो है, मुस्लिम्स जो हैं, दे शुड हैव देयर ओन होमलैंड। उन्हें अपना जो है वो एक अलग कौम चाहिए, उन्हें एक अलग जो है वो कौम चाहिए, वो एक अलग आज़ाद रियासत में रहना चाहते हैं, उन्हें एक आज़ाद मुल्क चाहिए, और उनको एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ हिंदूज, वो हिंदूज की मुदाखलत के बगैर, इंटरफियरेंस के बगैर अपनी जिंदगियां जो हैं वो अमन और सुकून के साथ, आज़ादी के साथ और इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 70, द टू नेशन थ्योरी। अब एक्चुअली टू नेशन थ्योरी हम जो है वो क्या थी? द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट्स फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब टू नेशन थ्योरी सिंपली बहुत
आसान डेफिनेशन जो है वो टू नेशन थ्योरी की वो क्या है कि टू नेशन थ्योरी जो है इट्स एन आइडिया, ये एक आइडिया है ऑफ सेपरेट स्टेट्स, अलग मुल्कों का अलग अलग मुल्क होने चाहिए हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। बेसिकली दिस इज द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। क्या है टू नेशन थ्योरी का आइडिया? ये आइडिया है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट स्टेट्स होनी चाहिए। और ये जो आइडिया था इट वाज बोर्न इन 1930 व्हेन कायद-ए-आज़म मेड अ फेमस स्टेटमेंट व्हिच इंस्पायर्ड जिन्ना इन हिज स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और ये स्टेटमेंट जो थी ये कायद-ए-आज़म को ये इलामा इकबाल ने 1930 में पेश की थी कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, मुसलमान और हिंदुओं को अलग रहना चाहिए। और इस स्टेटमेंट ने, इस बात ने कायद-ए-आज़म को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था कि कायद-ए-आज़म इससे मुतासिर हो गए और उन्होंने एक्चुअली ही स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले जो थे कायद-ए-आज़म वो ये चाहते थे कि बल्कि सभी लीडर्स जो थे दे कन्विंस्ड कि उन्हें अंग्रेजों से आजादी चाहिए और वो सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं के साथ एज अ वन नेशन रहेंगे। लेकिन ये जो आइडिया था टू नेशन थ्योरी का, इसके बाद ऑल द लीडर्स वर कन्विंस्ड कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना अंग्रेजों के जाने के बाद, वी मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट state for ourselves. Now, then, however, कायद-ए-आज़म died in 1938. कायद-ए-आज़म 1938 में वफात पाई। Before he could see his dream became reality. और उनकी वफात जो थी वो पाकिस्तान बनने से पहले हो गई और he couldn't see his dream become reality. वो कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनता ना देख सके और उनका ख्वाब जो था वो ख्वाब ही रह गया, वो हकीकत ना बन सका। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद है कायद-ए-आज़म ने, इलामा इकबाल ने मुस्लिम लीग मीटिंग जो थी 1930 में इलाहाबाद में जो हुई थी उसमें अपनी स्पीच दी। और उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिंध एंड बलूचिस्तान एमलगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो पंजाब को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर, कंबाइन कर कर, यूनाइट कर कर एज अ वन स्टेट देखना चाहता हूँ। और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। और मैं चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि मुसलमान जो है वो अपने आप को खुद गवर्न करें, ब्रिटिश राज के अंदर भी और ब्रिटिश राज के बाहर भी। एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims. और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो देखता हूँ कि एक मजबूत कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुसलमान स्टेट जो है वो मेरे सामने अपीयर हो रही है, जो कि मुसलमानों की फाइनल मंजिल होगी, खास तौर पे जो मुसलमान हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। The Muslims of the India are the only Indian people who can fitly be described as a nation in the modern sense of the world. और उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं इंडिया के वो ओनली इंडियन पीपल हैं, वो सिर्फ मुसलमान ही इंडियन वो पीपल हैं जो फिट होते हैं, जो अप्रोप्रिएटली मुनासिब तरीके से फिट इन करते हैं। अगर हम उनको एज नेशन का नाम लें तो मुसलमान हो जाते हैं कौम की डेफिनेशन में, अगर हम नेशन की डेफिनेशन को उसके मॉडर्न सेंस में लें। और हिंदू थॉट अहेड ऑफ अस इन ऑलमोस्ट ऑल रिस्पेक्ट। और he agreed, इलामा इकबाल was agreed कि हिंदूज जो हैं वो हमसे बहुत आगे हैं हर फील्ड में, have not
yet been able to achieve the kind of homogeneity which is necessary for the nation. और वो इस बात पर भी कन्विंस्ड थे कि बेशक हिंदूज हमसे हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन अभी भी वो वो यूनिटी अचीव नहीं कर सके जो कि कौम के लिए ज़रूरी है अचीव करनी, और जिसमें जो मुसलमानों में है, और मुसलमानों को ये जो यूनिटी जो है, ये होमोजेनिटी जो है, ये इस्लाम ने एज अ गिफ्ट दी है। इस्लाम ने हमारे अंदर कौम जो है वो हमें एज ए कौम पैदा किया है, और हमें सेम ब्लड और सेम नस्ल से पैदा किया। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये सेट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी, ये 3 कॉन्फ्रेंसेस थी जो कि लंदन में हुई थी 1930 से 1931 तक। 31 और 32 में ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इंग्लैंड में, और इसमें कोशिश की गई थी कि हमारा जो इशू है हिंदूज और मुस्लिम्स का, उसको सेटल डाउन किया जाए इनटू अ सब कॉन्टिनेंट। The British organized 3 roundtable conferences in London from 30 to 32 to try to find a way of ruling India that would be acceptable to everyone. ठीक है। और ब्रिटिशर्स जो थे through these conferences they wanted to sort out a way of government, एक ऐसा way of government निकालना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे जो कि हर सब कॉन्टिनेंट के रहने वाला हर बंदा जो है उसके लिए वो एक्सेप्टेबल हो, वो उसको माने। और इंडियन लीडर्स सच एज जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद इकबाल एंड कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी अटेंडेड। ठीक है। और मुसलमान और हिंदू लीडर्स जो थे उन्होंने इसको अटेंड किया। ये नाम आपको मैंने बता दिया, इन सब ने इन्हें अटेंड किया। नाउ फैक्ट बॉक्स। इन लंदन गांधी वोर his usual cotton clothes even when visiting the king at Buckingham Palace. ठीक है। लंदन में गांधी ने अपने आम कॉटन के कपड़ों में, जो वो आधे कवर्ड और आधे अनकवर्ड होते थे, उन्होंने उन्होंने उसी ड्रेस में जो किंग था बकिंगम पैलेस में उसको मिले, और आस्क्ड वेदर ही हैड बीन वेयरिंग इनफ क्लॉथ्स फॉर दिस इम्पोर्टेंट इवेंट। और उससे ये पूछा गया कि क्या इतने अहम मौके के ऊपर आपने कितने जो थोड़े कपड़े पहने हुए हैं ये इनफ है फॉर दिस मीटिंग, इस मीटिंग के लिए। तो गांधी रिप्लाइड, गांधी ने टॉन्टिंगली रिप्लाई किया, जवाब दिया, द किंग हैड इनफ ऑन फॉर बोथ ऑफ अस। और जो किंग था उसने इतनी लग्जूरियस कपड़े पहने हुए थे, इतना सारा कुछ लग्जूरियस जो था वो उसने पुट ऑन किया हुआ था अपने ऊपर। तो जो गांधी थे उन्होंने टॉन्टिंगली रिप्लाई किया कि मेरे हिस्से के भी, हम दोनों के हिस्से के जो कपड़े हैं वो जो किंग है उसने पहने हुए हैं, और किंग ने काफी कुछ पहना हुआ है, ये उन्होंने टॉन्टिंगली रिप्लाई किया। क्लियर बेटा? बेटा if you have any ambiguity, if you have anything to ask, you can text. ठीक हो गया। और अगर आपको पिछले चैप्टर्स में से कुछ समझ नहीं आया तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि सारे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर हैड बीन पोस्टेड, आप उसमें से अपनी चीजें जो हैं वो देख के उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो अभी हमने कंप्लीट किया यस्टरडे, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 5 इन द कमिंग वीक। नाउ जिन्ना's ग्रेट शॉक। अब जिन्ना जो थे, कायदे आजम जो थे, जाहिर है ही वांटेड टू improve the condition of the Indians, वो इंडियंस की जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करना चाहते थे। तो उनके लिए ये शौक था कि हिंदूज जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो फेयर नहीं है, और ब्रिटिशर्स भी जो हैं वो हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो फेल्ड, वो नाकाम हो गई फॉर 2 रीजंस। दो उसके रीजंस थे जिसके ऊपर जो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो फेल हो गई। द ब्रिटिश वर नॉट येट रेडी टू हैंड ओवर एज मच पावर एज इंडियन वांटेड। अब पहला काउंट क्या था, पहला रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे दे वर नॉट विलिंग, दे वर नॉट रेडी
वो नहीं चाहते थे अभी कि वो पावर्स जो हैं वो इंडियंस को हैंड ओवर करते हैं, उतनी पावर जितनी इंडियंस मांग रहे हैं। वो अभी रेडी नहीं थे, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इंडियंस को उतनी ज्यादा पावर दे दें जितनी वो मांग रहे हैं। और सेकेंडली कांग्रेस जो थी वुड ऑलवेज बी, एंड सेकेंडली द इंडियन ग्रुप्स कुड नॉट एग्री। और थोड़ी पावर जो थी, लिमिटेड पावर जो थी, वो इंडियंस जो थे वो उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम फुली पावर जो है वो अपनी इंजॉय करें और अपने मुल्क को अपने तरीके से चलाएं। Muslims felt that Congress would always be dominated by Hindus, and for this reason Muslims would never be allowed a fair say. अच्छा, अब मुसलमान जो थे उन्होंने ये महसूस किया, दे फेल्ट कि कांग्रेस जो है वो चूंकि यहाँ पर ज्यादा तादाद में है हिंदू, और कांग्रेस जो है वो ज्यादा पॉपुलर है अमंगस्ट दी ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने ये सोचा कि व्हेन ब्रिटिशर्स विल गॉन, जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हिंदूज जो होंगे वो डोमिनेट करेंगे हमारे ऊपर, हमारे से सुपीरियर हो जाएंगे। और इस वजह से हिंदूज जो हैं उन्हें कभी, मुसलमान जो हैं वो उनको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा अफेयर से, एक अच्छी जो कमांड वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे इन द सब कॉन्टिनेंट। जिन्ना वॉज डिस्गस्टेड बाय द एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस, और जिन्ना जो थे वो बड़े डिस्गस्टेड थे, उनको बड़ी बैड फीलिंग्स थी, सिकनिंग फीलिंग्स थी, रिपल्सिव फीलिंग थी जो कि उन्हें कांग्रेस के एटीट्यूड से मिल रही थी। एंड कायदे आजम रियलाइज्ड दैट his dream of Islamic Hindu unity was impossible, और at that point कायदे आजम जो थे उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि वो और कांग्रेस यानी हिंदू, इस्लाम में इस्लाम और हिंदू जो है, इस मुसलमान और हिंदू जो है वो कभी भी मिलकर एक जगह पर जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये उनके लिए इम्पॉसिबल। ठीक है बेटा। नाउ फिगर 6.4, I I received the shock, कायदे आजम अब कह रहे हैं, I received the shock of my life at the meeting of the round table conferences। ठीक है, और उन कॉन्फ्रेंसेस में कायदे आजम ये जान गए थे और उनको ये बहुत शॉक लगा था इस बात को अंडरस्टैंड करके कि मुसलमान हिंदूज जो हैं वो कभी भी, अंग्रेज जो हैं वो हमेशा से हिंदुओं को प्रिफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, और मुसलमानों को हिंदूज कभी भी सही पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। और इन द फेस ऑफ डेंजर द हिंदू सेंटिमेंट, द हिंदू माइंड, द हिंदू एटीट्यूड लेड मी टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज नो होप ऑफ यूनिटी। और कायदे आजम जो थे वो ही केम टू द पॉइंट कि उनको ये डेंजर फेस करना पड़ रहा था, उनको ये डेंजर लग रहा था कि हिंदुओं के जो सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात हैं, हिंदुओं का जो माइंड सेट है और हिंदुओं का जो एटीट्यूड है, रवैया है टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, उन्होंने इन सब चीजों ने कायदे आजम को इस पॉइंट पर पहुंचा दिया कि कायदे आजम ने इस बात को कंक्लूड कर लिया कि देयर वाज नो होप ऑफ यूनिटी, कि ये मिलके नहीं जिंदगी गुजार सकते हिंदू एंड मुस्लिम्स। और कायदे आजम फेल्ट वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट, कायदे आजम जो थे उन्होंने कहा कि आई फेल्ट वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट माय कंट्री, और मैं अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बुरा सोचना शुरू हो गया हूँ। मैं ये सोचना शुरू हो गया हूँ कि अगर हमें हिंदुओं के साथ रहना पड़ा तो हिंदू हमें कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं देंगे सही तरीके की, और इससे उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग, ग्लूमी फीलिंग जो थी वो आनी शुरू हो गई। उन्होंने वर्स्ट एस्पेक्ट जो था वो देखना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा आई बिगेन टू फील दैट नाइदर कुड आई हेल्प इंडिया नॉर चेंज द हिंदू मेंटेलिटी नॉर कुड आई मेक द मुस्लिम्स रियलाइज द प्रीकेरियस पोजीशन। अब उन्होंने कहा मैंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि ना ही मैं इंडियंस को चेंज कर सकता हूँ, ना ही मैं हिंदुओं की मेंटेलिटी को चेंज कर सकता हूँ, ना ही मैं मुसलमानों को रियलाइज करा सकता हूँ कि कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन, कोलैप्स करने वाली खतरनाक सिचुएशन में वो फॉल कर रहे हैं।
I felt so disappointed and depressed that I decided to settle in लंदन। और कायदे आजम ने ये फैसला कर लिया, वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए और ही डिसाइडेड कि वो इंडिया छोड़ के लंदन जाकर सेटल डाउन कर जाए। ठीक हो गया बेटा? होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत आराम आराम से बेटा पढ़ा रही हूँ, कोई जल्दी, कोई भाग दौड़, कोई तेजी से नहीं पढ़ा रही, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो जहां आपको कोई चीज समझ ना आए, यू कैन टेक्स्ट। न्यू लाइफ फॉर द लीग ऑफ लखनऊ। ठीक है, जो हमारी मुस्लिम लीग थी उसमें एक नई रूह जो थी वो लखनऊ के मकाम पर कायदे आजम ने फूंकी डाली। अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं कायदे आजम की, अपनी सिस्टर और अपनी बेटी के साथ, जो उन्होंने जो हम लंदन में उन्होंने उतरवाई। उनकी बेटी दीना है, उनकी बहन फातिमा जिन्ना। Now with Jinnah living in London, the Muslim League declined and Congress gained popularity. ठीक है, मुस्लिम जब कायदे आजम जो थे when he was living in London, जो मुस्लिम लीग थी वो डाउनफॉल का शिकार थी, डिक्लाइन कर गई, वो खत्म हो गई, बिल्कुल नीचे आ गया ग्राफ उसका। और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा जो पॉपुलैरिटी थी, मकबूलियत जो थी वो हासिल कर ली, इवन अमंग सम मुस्लिम्स। और हत्ता कि इतनी पॉपुलर हो गई कांग्रेस के चंद जो मुसलमान थे उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और वो भी कांग्रेस के पॉइंट्स जो थे, कांग्रेस की जो फीलिंग्स थी, कांग्रेस जो था उसको ही अपनी नुमाइंदा जमात समझने लगे थे। Then in 1934, Liaquat Ali Khan persuaded Jinnah to return to build up the league. और 1934 में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो इंग्लैंड सेटल हो गए थे, तो 1934 में लियाकत अली खान जो थे उन्होंने कायदे आजम को परसुएट किया, कायदे आजम को कन्विंस किया, कायल किया कि वो वापस आए और दोबारा से लीग जो है का मुस्लिम लीग जो है उसको रीबिल्ड करें, उसे दोबारा से बनाएं, उसे स्ट्रॉन्ग करें और अपनी स्ट्रगल को दोबारा से शुरू करें, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो उस वक्त तक टूट चुकी थी, डिक्लाइन हो चुकी थी। जिन्ना वॉज इलेक्टेड एज द लीग्स परमानेंट प्रेसिडेंट एंड, ठीक है, और जिन्ना जो थे उनको इलेक्ट किया गया मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट, मुस्तकिल प्रेसिडेंट जो था उनको वो इलेक्ट किया गया। और जल्द ही इंस्पायर्ड बाय लेटर्स फ्रॉम इकबाल ही बिगेन टू वर्क फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। और जल्द ही जो कायदे इलामा इकबाल के खतूत थे, जो इलामा इकबाल कंटिन्यूसली कायदे आजम के साथ अपनी जो थी वो कन्वर्सेशन जो थी वो थ्रू डायलॉग्स जो थे, थ्रू लेटर्स जो थे उनको बताते थे, उनको लिखते थे, और लेटर्स के जरिए उन्हें सारी सिचुएशन बताते थे, उन्हें मुल्क के हालात बताते थे। तो उन लेटर्स से इंस्पायर होकर कायदे आजम जो थे उन्होंने दोबारा से एक्टिवली काम शुरू कर दिया फॉर